چینل پہ جڑے رہنے کے لیے آپ سبھی کو دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان دونوں کے ذریعے سے، یعنی مفتی اعظم ہند کی صاحبزادی بڑی بیٹی اور حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب کے بڑے بیٹے علامہ ابراہیم رضا خان، دونوں کی شادی سے حضور تاج الشریعہ پیدا ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیر و عافیت سے ہوئیں گے۔ آپ سبھی سے دلی گزارش ہے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے، قمر عثمان غنی صاحب کے لیے، فلسطین اور غزہ کے لیے، اور خاص کر کے مسجد اقصی کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرے۔ رب و تبارک و تعالی اپنے پیارے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو علم غیب سے مدد عطا فرمائے۔ یعنی تاج الشریعہ کے نانا بھی اعلیٰ حضرت ہیں، دادا بھی اعلیٰ حضرت ہیں، نجیب الطرفین ہیں، نانا مفتی اعظم ہند، دادا حجت الاسلام، ان دونوں کے واسطے سے اعلیٰ حضرت تک آپ پہنچتے ہیں، ماں کے سلسلے سے بھی، باپ کے سلسلے سے بھی۔ گھر میں آپ کی عمر جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کی تھی، بریلی میں یہ رسم بسم اللہ خانی اعلیٰ حضرت کے خاندان میں بڑی مشہور ہے۔ آپ کو آپ کے والد ماجد نے کروائی تھی، اور آپ کی والدہ کے پاس ہی آپ نے کتنا دین پڑھ لیا تھا۔ مفتی اعظم ہند کی بیٹی تھی ان کی والدہ، تقوی بچپن سے سکھایا تھا، اور ایسے تقوی کہ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ کے سفر میں بھی میں نے بہت مرتبہ دیکھا کہ کبھی آپ کی نماز قضا نہیں ہوتی، چاہے وہ کیسے بھی سفر میں آپ جا رہے ہو۔ بلکہ بریلی میں پہلے کہیں سفر میں جانے سے پہلے آپ کو بتانا پڑتا تھا کہ کہاں سے کہاں سفر پہ جانا ہے، اور پوچھتے تھے، مثال کے طور پر ممبئی سے پونا جانا ہے، پونا سے پھر آگے جانا ہے، تو انہیں بتانا پڑتا تھا کہ یہاں سے یہاں کا ٹائم کتنے دیر کا ہے، کتنے گھنٹے لگتے ہیں، اور پھر اسی کے حساب سے نمازوں کے بیچ کا ٹائم وہ سفر کے لیے دیا کرتے تھے کہ جس جگہ پہنچے وہاں نماز کا وقت ہونا چاہیے، اور شہر میں نماز پڑھ کر کے چلیں۔ اور ایسے اوقات اگر بیچ سفر میں نماز آ جائے تو اس کو آپ رد فرمایا کرتے تھے، خاص طور پر اسی لیے ٹرینوں کا سفر کم کیا کرتے کہ اس میں اپنا اختیار نہیں چل پاتا، اور سخت مشقت اور محنت جو گاڑیوں کا سفر، اور وہ بھی یو پی کی سڑکیں اس زمانے میں اچھا خاصا تھکا دیتی۔ آپ لمبا سفر اپنی گاڑیوں میں کرتے صرف اس بنیاد پر کہ نماز قضا نہ ہونے پائے۔ یہ بچپن سے والدین کا دیا ہوا طریقہ تھا۔ اور پڑھنے کے وقت آپ کا حال یہ تھا کہ آپ منظر اسلام میں پڑھتے رہے، پڑھائی ان کے جو ساتھ میں پڑھے ہوئے ہیں وہ لوگ موجود تھے۔ گجرات کے ایک مولانا ہیں، مقبول صاحب ہیں، حضور تاج الشریعہ کے وہ ساتھیوں میں رہے، کہتے ہیں کہ پڑھنے کا طریقہ یہ تھا کہ کلاس شروع ہونے سے پہلے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے مزار کے پاس کھڑے رہتے، اور پڑھنے کے لیے جیسے ہی کلاس میں آتے، پڑھ کر ہونے کے بعد فوراً پھر اعلیٰ حضرت کے مزار کے پاس آتے۔ ان سے روز پوچھتا میں کہ آپ جانے کے وقت بھی آنے کے وقت بھی کیا کہتے ہیں؟ فرماتے کہ امام علم و فن یہ ہیں اعلیٰ حضرت، یہ امام علم و فن ہے، تو جو پڑھتا ہوں کلاس میں وہ ان کو سنا کر کے آ جاتا ہوں تاکہ محفوظ ہو جائے، اور اگر کچھ غلط ہو تو یہاں سے مجھے اشارہ ہو جائے۔ یہ ان کے بچپن کا اور پڑھائی کے زمانہ میں بتا رہا ہوں۔ پھر جب آپ یہاں کا علم جو درس نظامیہ وغیرہ ہوتا ہے ختم کر کے مصر گئے ہیں، 1963 کی بات ہے، مصر جب تشریف لائے تو 3 سال آپ وہاں پر رہے۔ وہ کیسے رہے آپ کو میں بتاؤں۔ 3 سال تک 1963 سے 1966 تک تقریباً آپ وہاں پر تھے۔ 40 سال کے بعد جب حضرت کے پاس میں قریب رہا، آپ نے خود مجھے بتایا تھا اپنے پڑھنے کے زمانے کی باتیں کہ اس وقت کھانا بنانا پڑتا تھا، بنا کر کے کھاتے تھے۔ فرماتے ہیں کبھی پکی سبزی کھائی نہیں ہم نے، کتاب کھول کر بیٹھتے تھے اور ادھر سالن پکتا رہتا تھا، اور کبھی تو جل جاتی تھی سبزی اور کبھی جلدی اٹھا لیتے تو کچی رہ جاتی تھی۔ 3 سال ایسے ہی نکلے، اور ہم صرف اس بنیاد پر کہ کھانے کے لیے نہیں گئے تھے، کتابوں سے اتنی غذا مل جاتی تھی کہ اس کھانے کی کبھی شکایت بھی نہیں کی۔ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ حضور تاج الشریعہ ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی دینی خاندان تو ہے ہی،
आला हजरत अपने जमाने के बहुत बड़े रईस थे, जमींदार भी थे। बेहिसाब जमीनें आला हजरत की आज भी मौजूद है, पूरे का पूरा गांव उनकी जमीनों का है, लेकिन कभी भी वो माल का गुरूर नहीं आया। पढ़ने के जमाने में कहते हैं कच्ची सब्जी खाते या फिर जल जाती सब्जी। ऐसे 3 साल गुजरे और एक वक्त सुना हमने कि यहां से हिंदुस्तान में उस जमाने में जो हुकूमतें चल रही थी कांग्रेस के दौर में, गालिबन यहाँ की कांग्रेस की लेडी वहां पहुंची थी। और जब वहां पर पहुंचने के बाद हिंदुस्तान के तलबा स्टूडेंट्स कौन कौन हैं, जाहिर सी बात है हमारे मुल्क के भी यहाँ पढ़ रहे हैं, तो बताया गया कि हाँ है, यहाँ पर कुछ तलबा हैं। हजरत के साथ जो इंडियन स्टूडेंट्स थे वहां पर बताया गया कि तुम्हारे मुल्क की एक बड़ी लीडर आई हुई कांग्रेस की, वो आई हुई है और बुलाया जा रहा है। हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि जब कोई मुल्क का प्रेसिडेंट आता था तो जामिया अजहर में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं इनको पेश किया जाता था कि ये इंडिया के हैं, ये फलां जगह के हैं। तो इसी तरह हजरत को जब खबर दी गई कि एक लेडी आई हुई है, तो जाहिर सी बात है दूसरे जब पढ़ने के जमाने में दौड़े दौड़े भागते थे कि देख कर क्या है हमारे मुल्क के या तो प्राइम मिनिस्टर या जो भी मिनिस्टर आए हों। हजरत ने पढ़ने के जमाने में इनकार फरमा दिया। पहली बात तो वो काफिरा है, दूसरी बात तो गैर महरम है, मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। ये उस जमाने आप तन्हा थे जो इनकार किए, दूसरे मिलने के लिए अगरचे चले गए हों, नहीं गए। हालांकि उस जमाने की कोई बात आपको कौन क्या कह सकता था, पढ़ने का जमाना था, मिल लिए तो क्या है, नहीं, ये तकवा उनके घर की विरासत में मिला है। इसी तरह से मैं 40 साल के बाद हजरत के साथ मिस्र के दौरे में साथ रहा। उन 2009 में हजरत तशरीफ लाए थे मिस्र, जब मैं वहां पढ़ रहा था। और ये एक आपको इसलिए मैं बता रहा हूं कि लोगों को ये ना लगे कि सुनी सुनी बातें कर रहा हूं। पहले मैं अपनी हैसियत आपको बता दूं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तालीम का अक्सर हिस्सा जो मैंने मुफ्ती कोर्स किया है वो हुजूर ताजुश शरिया के पास ही किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना किताब आपके पास पढ़ने का मुझे शरफ हासिल होता, वो पूरी रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। मेरे वो खास उस्ताद रहे हैं, मेरी तरबियत फरमाए हैं। और इतना ही नहीं, जामिया अजहर जाने की जब मेरी बात आई थी, जामियतुर रजा का इल्हाक जब हुआ था जामियतुर रजा का जामिया अजहर से, तो पहली बैच जो बरेली से जाने वाली थी उसमें सिर्फ सिंगल मेरा नाम आया था, सिर्फ मेरा अकेले का नाम है, वो भी हजरत की दुआ से। अल्हम्दुलिल्लाह 1-2-1.5 साल मुफ्ती कोर्स का होने के बाद मेरा सिलेक्शन लेटर वहां से आया। तो अभी मेरी दस्तार बंदी नहीं हुई थी, यानी मुफ्ती कोर्स की जो अमामा बांधा जाता है वो उर्से रजवी में, उससे पहले ही मेरा सिलेक्शन लेटर आ गया, जाना था। पूछा मैंने हजरत से क्या करूं, कहा आप निकल जाओ। एक चाह भी तो रहती है कि इतने दिन पड़े और मेरे दस्तार नहीं हुई। मुझे भी ये ख्वाहिश थी कि जलसे में उर्से आला हजरत के बाद चला जाता तो अच्छा होता, लेकिन वहां वक्त नहीं था, अगर लेट करते तो सिलेक्शन खत्म हो जाता। तो हजरत ने फरमाया कि नहीं जाओ तैयारी करो। तो मैं बादिले नाखास्ता जामिया में आया, अपना सामान वगैरह उठाया, तैयारी कर रहा था। उसी वक्त मुझे खबर दी गई कि हजरत मदरसे में आ रहे हैं, जोहर के बाद मदरसे आने वाले। उसी दिन मुझे निकलना था बरेली शरीफ से, मेरे सब असातिज़ा से साथियों से मिलकर सुना कि हजरत आ रहे हैं। अचानक तो हजरत के आने के वक्त सारे तलबा जितने भी हैं वो मस्जिद में जमा हो जाते थे। तकरीबन 700-800 के करीब वहां पर तलबा पढ़ते थे बरेली शरीफ में। तो सारे असातिज़ा सब जमा हुए, तो आने की खबर पूछी गई। दोपहर में हजरत तशरीफ लाए हैं, उनके साहबजादे अल्लामा असजद रजा साहब भी साथ में थे। तो बताया हजरत ने कि हमारे जामिया का एक बच्चा जामिया अजहर जा रहा है, मैं उसके लिए आया हूं। मेरे लिए हजरत तशरीफ लाए थे और आने के बाद हजरत ने बयान फरमाया, मेरे दिल में जो ख्वाहिश थी कि मेरी दस्तार के बाद जाता तो अच्छा होता, अपने साथ अपना एक अमामा लेके आए थे, एक अत्तर की बोतल और एक दस्ती, ये चीजें मुझे दी और सबके सामने मेरे सर पर बांधा। ये होता है रोशन जमीर पीर, जो दिलों के हालात से खबर रखता है। आपने फरमाया अब तुम मायूस ना हो, तुम्हारी दस्तार मैंने कर दी है। यह हजरत ने बयान में फरमाया था।
बयान फरमाया और नसीहत भी की थी। जाने के बाद वहां कैसे रहना चाहिए, वहां कैसे रहना, उस पर एक आधा घंटा नसीहत फरमाई कि लोगों से मेल जोल ज्यादा ना रखो, इल्म के लिए जा रहे हो, घूमने फिरने से ताल्लुक नहीं रहना चाहिए, तालिबे इल्म को ये सब चीजें जहर है। आपने कई अरबी की इबारतें पढ़कर नसीहत फरमाई, फिर वहां से चल पड़ा। मिस्र जाने के बाद अक्सर ऐसा होता कि हजरत से मेरे ताल्लुकात कायम थे अल्हम्दुलिल्लाह। किताबों को हजरत बहुत पसंद फरमाते थे, अरबी की किताबें वो मिस्र से खरीद कर बरेली लाने का काम मेरा। हम जहां रहते थे जिस हॉस्टल में, वहां से दरियाए नील सिर्फ 15 मिनट का रास्ता है मिस्र में, और बहुत दुनिया की सबसे बड़ी लंबी दरिया का नाम, नदी का नाम है दरियाए नील। हजरत भी उसी हॉस्टल में 3 साल गुजार कर गए, और जब 40 साल के बाद आए थे यानी 2009 में, हजरत की बसारत, आंखों को कमजोरी लायक थी, देख नहीं पाते थे, तो कार में बैठे हुए हम गुजर रहे थे, दरियाए नील का ब्रिज आया, तो मैंने अर्ज किया कि हजरत हम दरियाए नील के ऊपर से गुजर रहे हैं। चलते चलते हम बता देते कि अभी करीब में ये चीज आई, वो चीज आई, तो हजरत को हमने बताया कि ये दरियाए नील के ऊपर से हम गुजर रहे हैं, तो मुस्कुराने लगे और फरमाते हैं मेरे पढ़ने के जमाने में जब मैं यहां था 3 साल रहा, कभी मुझे आने का इत्तेफाक ही नहीं हुआ, कभी दरियाए नील देखा नहीं। मैं आज आपको बताऊं, यहां इंडिया से पढ़ने के लिए जितने भी जाते हैं, अभी दाखिला नहीं हुआ होता है, वो दरियाए नील देखने पहले जाते हैं, एडमिशन बाद में होता है, वो नील देखने पहले जाते हैं, पिरामिड्स पहले देखना है, अलेक्जेंड्रिया पहले देखना है, सब जाने वालों का ये हाल है। हजरत फरमा रहे हैं 3 साल में रहा जामिया अजहर में, कितना मुश्किल से 15 मिनट का रास्ता है, 15 मिनट का रास्ता है। फरमाते कभी मैं दरियाए नील देखा ही नहीं, और अब 40 साल के बाद आया हूं, तुम लोग उसके ऊपर से गुजार रहे हो, अब मेरी आंखें ही नहीं। ये मुत्तकी की जिंदगी होती है, जिसके सामने दुनिया की खूबसूरती फीकी है। हकीकत बात तो यह है, जिन नजरों में जमाले मुस्तफा बसा हो, उसे दुनिया की खूबसूरती कभी अपनी तरफ दावत दे ही नहीं पाएगी। ये उन बुजुर्गों की जिंदगी। हुजूर ताजुश शरिया दामा जिल्लहुल आली, आपका साया हम सब पर हमेशा कायम और दायम रहे। आप अपने तकवा और तहारत की जिंदगी को जिस तरह गुजारते रहे, उनकी पर्सनल लाइफ में मैंने देखा वजीफों का टाइम अलग, लोगों से मुलाकात का टाइम अलग, अपनी इबादतों का टाइम अलग, फिर किताबें लिखने का टाइम अलग। आखिरी उम्र तक आंखें जा चुकी थी, देख के पढ़ नहीं सकते थे। उस जमाने में आपने तकरीबन 12 या 14 किताबें लिखी हैं। कैसे? उनके दामाद बैठे होते, मैं भी बैठा हूं लिखने में, और आज उनके पोते दामाद मौलाना आशिक साहब मेरे साथियों में से, हजरत बोलते जाते थे, वो लिखते चले जाते थे, लिखते जाते थे। इस तरह करते हुए आंखें जाने के बाद भी तकरीबन 12 किताबें आपने लिखी। आला हजरत की जात, उस वक्त जो किताबें आला हजरत की उर्दू में थी, उसको आपने अरबी में ट्रांसलेट किया। बहुत सारी किताबें मिस्र पहुंची और वहां से छप भी गई। और आपको यह भी मैं बताऊं कि मिस्र जब तशरीफ लाए थे, तो वहां पर आपका जलाल और जमाल देखने के काबिल था। उलमाए मिस्र जो जामिया अजहर के असातिज़ा हैं, वो जल्दी किसी को भाव नहीं देते, दुनिया के बड़े इल्म वाले समझे जाते हैं। जामिया अजहर में पढ़ा रहे हैं, वो बहुत ऊंचे लोग होते हैं, वो जल्दी किसी को मिलने नहीं आते। लेकिन हुजूर ताजुश शरिया जब मिस्र आए थे, तकरीबन 27 असातिज़ा जामिया अजहर के उनसे मिलने के लिए आए थे। मुझे याद है जितनों को दावत दी गई थी, उसके अलावा दूसरे यूनिवर्सिटियों के सब मिलाएं तो तकरीबन 40 बड़े उलमा एक मजलिस में मौजूद थे। हजरत अरब लोगों के बीच में बैठे हुए थे। और वहां कैसा होता है, जिम्मेदारी की बात होती है, बात करेगा, और वो भी एक अजमी आदमी अरब में बात करेगा, अरबी लोगों के दरमियान। हम डरे से हमें हमारी जुबान नहीं खुलती थी उन लोगों के सामने, और हजरत फसीह अरबी में आधा घंटा तक उनके सामने बयान करते रहे। 40 साल पहले पढ़ी हुई अरबी मिस्र की उस वक्त तक उनके ज़हन में है। जब बोलते गए, वो असातिज़ा जो जामिया अजहर के, वो अश करते रहे। उसके बाद मिस्र का एक तरीका है, अब जैसे यहां कैसे कोई भी आए बयान करे और चला जाए, वहां मिस्र में ऐसा नहीं होता। बयान करने के बाद मुकर्रिर को बैठाते हैं, बैठो,
जो बयान किए ना उसमें कुछ सवालात हैं, हम सवाल करेंगे, आप जवाब दो। वहां का कानून ऐसे ही है, तरीका है, कोई भी बोल के भाग नहीं सकता। यहां तो कुछ भी बोलो और चलो जाओ, लोग सब सुनने को तैयार हैं। वहां ऐसा नहीं होता, मुकर्रिर को बिठाते हैं, बयान खत्म होने के बाद उसे 15 मिनट या आधा घंटा देना पड़ता है। हजरत के साथ भी यही हुआ, आपका बयान खत्म हुआ तो लोगों ने कहा कि हमारे कुछ सवालात हैं, आप बैठे। हजरत बैठे रहे, सवालात आते रहे, फसी अरबी में हर एक का जवाब देते रहे। उसी मजलिस में मैं जानता हूं सोमालिया के, अफ्रीका के, हबशी जो स्टूडेंट्स वहां पढ़ते थे, कई तलबा जामिया अजहर में, 60 मुल्कों के तलबा उस मजलिस में हाजिर थे। इंडोनेशिया के, मलेशिया के, यूक्रेन के, इंग्लैंड के, बहुत सारी जगहों के जो स्टूडेंट बैठे थे, सबों ने हजरत के हाथ पर बैत की। उस वक्त उस मजलिस के बाद वहां पर बैत ली और हजरत से कहा कि आप अपनी सनद हदीस की इजाजत हमें अता करें। उस पूरी मजलिस में उलमा पर एक ही रौब तारी था। तब हमें दूसरे दिन से हमारी कॉलेज कुल्लिया जिसमें हम पढ़ते थे जाने में फख्र होने लगा। जब हम दाखिल होते थे तो हमारे साथी जो मिस्र के थे वो सब कहते थे अच्छा इंडियन हो। पहले तो हकीर नजरों से देखते थे, इसको तो अरबी आती नहीं, लेकिन हजरत के आकर जाने के बाद फख्र से हम जाते थे, हाँ हम भी उसी हिंदुस्तान से हैं जहां के हुजूर अख्तर रजा साहब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सर उन्होंने वहां मिस्र में बुलंद किया था। हमें कभी कभार क्लास में खड़ा करते थे उस्ताद और लोगों को ये बताते थे, जानते हो ये हिंदुस्तान से आए हैं जहां से हुजूर ताजुल शरिया आए थे, जिनकी मजलिस में हम बैठे थे। उनके आने का दौरे का पूरा यानी रूदाद मिस्र के अरबी अखबारों में छपी थी ये बातें कि, और उन्होंने क्या कहा, होता ही है, हर कोई फजीलत अपनी तरफ फेर लेता है। हुजूर ताजुल शरिया का ये तो तकवा था और उनका खानदानी इल्म था, लेकिन दूसरे दिन अखबार में, मिस्र के अखबार में एक लंबा मैटर, एक लंबा मजमून शाया हुआ, यऊदुल फज़्लु इलल अज़हर, यानी ताजुल शरिया को जो फजीलत हासिल है, उन्होंने ये लिखा कि ये जामिया अज़हर से पढ़े हुए हैं। हर कोई चाहता ही है कि हमारे ही हैं। तो ये पहली मर्तबा देखने को मिला कि उन लोगों ने भी कहा कि अजहर के तलबा जामिया अजहर से पढ़े हुए ऐसे ऐसे लोग भी हैं। तो दूसरे दिन उसके जो रईस जामियातुल अजहर जो बड़े प्रिंसिपल के मकाम पर होते हैं, 4 लाख स्टूडेंट हैं जामिया अजहर के, तकरीबन 4.5 लाख के करीब तलबा हैं जामिया अजहर में जो पढ़ते हैं। वो एक पूरा शहर है, छोटा मोटा एक मदरसा नहीं, जामिया अजहर एक पूरा शहर है। 105 मुल्कों के तलबा वहां रहते हैं, 105, और 56 फैकल्टीज हैं अलग अलग, जैसे यहाँ साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स ऐसे होते हैं, इस तरह के 56 फैकल्टीज जामिया अजहर के अंदर है। उतना बड़ा एक इदारा, उसके प्रिंसिपल शेख अहमद तैयब दूसरे दिन हजरत को अपने दफ्तर में दावत देकर बुलाए, उसमें हम भी हाजिर थे। जब वहां पर गए तो हजरत को वो लेने के लिए आए, नीचे से हजरत को पकड़ करके ले गए, बिठाए, और बातचीत के बाद हमें ये एक्सपेक्टेशन था भी नहीं कि मतलब यहाँ ये बाहर से आए हुए लोगों का इतना बड़ा इस्तकबाल होता है। हजरत के साथ हम खड़े थे तो वही रईस जामियातुल अजहर जो अहमद तैयब साहब थे, उन्होंने एक अवार्ड निकाला जिस पे लिखा हुआ था दिर्उ फख्रिल अजहर, कि अजहर का जिस पर फख्र है वो हम इसे अता कर रहे हैं। यहां पर भी बात उनके अजहर की आती है, जामिया अजहर की, यानी हजरत को उन्होंने थमाया, वो एक बहुत बड़ा शील्ड है, हजरत को दिया। हमारे ये प्लान में भी नहीं था और सोचा भी नहीं था कि ये मिलेगा। हुजूर ताजुल शरिया ने उसे कबूल किया और हमारे हाथ में दे दिया, रखो इसको। कार की डिक्की में रखकर लाए थे, मुझे याद है, कार की पीछे की डिक्की में उसको रखवाया हजरत ने, रखो। और यहां आने के बाद पता चला कि उसकी अहमियत क्या है। हजरत के पास ऐसी दुनिया की बहुत सारी सनदें, अलकाबात आए, आपने कभी उसकी तरफ तवज्जो नहीं फरमाई। हजरत को जब ये बताया गया कि हजरत ये बहुत बड़ी चीज है, आज तक हिंदुस्तान में किसी को ये नहीं दिया गया, और सुना है पाकिस्तान के एक आलिम को बहुत बरसों पहले दिया गया था। हजरत सब सुनते रहे, शाम में अपने क़यामगाह पर बैठे थे और तलबा भी मौजूद थे, तब कहने लगे सब सही है, उन्होंने बड़ी चीज दी है, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि मेरे नबी के दरबार से मिल जाता।
ये होती है एक मुत्तकी की जिंदगी कि उनकी आस लगी होती है दरबारे रिसालत से, दुनिया से उनकी तवक्को नहीं होती, बारगाह रिसालत। ये कहने लगे क्या ही अच्छा होता कि बारगाह नबी से कुछ मिल जाता। अजीजा ने गिरामी, इसीलिए तो कहते हैं उनके आस्ताने पर मेरा दम निकल जाता और उनकी खाक में मैं मिल जाता। ये हजरत के अशार हैं। वो हमेशा इस बात की तमन्ना करते थे और उनकी जिंदगी कहने के लिए बहुत सारी चीजें। हक गोई का आलम यह था, हक बयान करने का, कभी किसी की रियायत नहीं की, कभी किसी की नहीं। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सज्जादा नशीन थे, वो हमारे सर आंखों पर, गौस पाक की औलाद में से। लेकिन वहां के तौर तरीकों के एतबार से वो टाई सूट बूट में आए हुए थे। वो आए थे, हजरत ने देखा और टाई के खिलाफ थे हजरत। टाई ये यहूद और नसारा का शियार है, उनके चेहरे पर दाढ़ी भी नहीं थी। तो आप अदब भी गौस पाक के दरबार का मलहूज रखते। कैसे कहते हैं, आकर के मुसाफा किया और उनसे मिल करके सिर्फ इतना कहते हैं कि आपने जो ये लिबास पहना है ये आपके घर का नहीं लगता। बुखारी के उस्ताद हैं जामे अजहर के, लेकिन टाई पहन के आए। हजरत ने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और उसके बाद उनके कान में सिर्फ इतना कहा कि ये टाई यहूद और नसारा का तरीका है, इस पर मैंने एक किताब लिखी है। तो किताब का हवाला आपने पेश किया। तो वो जो मुहद्दिस थे अभी वो बाहयात हैं, हजारों शागिर्द हैं उनके, उन्होंने टाई पहले यूं की और कंधे पे यूं डाल दिया पीछे, और उसके बाद फिर बैठे रहे और हजरत से कहा मैंने पीछे डाल दिया है, टाई लटक नहीं रही, अभी गले में बंधी हुई थी, पीछे डाल दिया है। हजरत ने फरमाया पीछे नहीं गले से निकाल ली थी। उस वक्त तक ये नहीं कि एक बहुत बड़े आलिम दीन आए, उन्होंने यूं अपनी टाई निकाली। यह हमारे सामने की बात है। और फरमाते हैं अगरचे मेरी तहकीक अलग थी, मैं इसको यहूद और नसारा की शिआर नहीं समझता था, लेकिन शेख आजम के एहतराम में मैंने इसको हमेशा के लिए निकाला। उन्होंने निकाल दिया और फिर हजरत का हाथ पकड़े, हाथ पकड़ करके कहने लगे आप जिस बात की मुझे तलकीन करते हैं मैं उस पर अपनी तस्दीक करता हूं और ये कहता हूं कबिलना अला मिल्लत रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह की मोहब्बत पर हमने आपको कबूल किया है। ये हमने वहां पर हक गोई का मुजाहरा देखा। लोग डरते हैं किसी को बोलने के लिए, लेकिन आपने हक बयान करने के लिए कभी किसी का चेहरा नहीं देखा। दूसरों की बात तो छोड़ो, उनके खानदान में से भी अगर कोई जरा बराबर मसलक के आला हजरत से हटा तो आपने उसके खिलाफ भी अपनी जुबान भी खोली, कलम भी। उनके खानदान में एक साहब ऐसे भी निकले जो इत्तेहाद मिल्लत बनाए हैं, देवबंदियों से, वहाबियों से। आला हजरत का खून हो ही नहीं सकता, इस तरह से करे तो जिंदगी भर हुजूर ताजुल शरिया जिस भी जलसे में जाते, लोगों को मालूम है या नहीं पता नहीं, वो इत्तेहाद मिल्लत आपको भी नहीं मालूम होगा, लेकिन हुजूर ताजुल शरिया आते तो दुआ जब करते तो आखिर में ये कहते कि मौला जितने हमारे दीन में सुलह कुल्ली बन रहे हैं ये इत्तेहाद मिल्लत नहीं है, जिल्लत है, किल्लत है। ये कहते और कहते कि वो उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। उनके खानदान का फर्द भी अगर हट गया होता तो उसके मुतालिक भी वही तलवार चलती। ऐसे नहीं कि घर वाला है उसको अंदर रख ले। ये अहलुल्लाह की अलामत होती है। हक बोलने वाले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे नाइब ऐसे दुनिया में बहुत कम आते हैं, बहुत कम आते हैं। उनके वजीफों का हाल ये था, उम्र उनकी 70 के ऊपर जा चुकी थी तब उन्होंने हिफ्ज कुरान शुरू किया था। कुरान के हाफिज नहीं थे, 70 साल की उम्र के बाद कुरान हिफ्ज कर रहे थे। मेरे सामने 15 पारे कर चुके थे, रोज याद करते थे और सुनाते थे। यहां लोगों को कुल वल्लाह याद नहीं हो रहा है और जवानी में सोचते हैं अब तो उम्र ढल गई। 70 साल की उम्र में वो कुरान का हिफ्ज शुरू किए थे। ये सब के लिए एक ऐसा आइडियल वो बन करके गए हैं। लोगों दीन सीखने और हासिल करने की कोई उम्र ही नहीं होती, आप कब्र में जाने तक भी हासिल करते रहो। और वो भी हिफ्ज पढ़ने वाले एक बच्चे को बुला करके सुनाते थे, सुनो मेरा पूरा कुरान। वो लड़का सुनता था, रोज सुनता था। जब हम पढ़ने के जमाने में थे हजरत हिफ्ज कर रहे थे। ये 70 साल के बाद लोग सोचेंगे अब शर्म है। किस बात की शर्म है? दीन सीखने के लिए। अजीजा ने गिरामी, वो ताजु शरिया रहमतुल्लाह अलैह की जात हमा जिहद थी, बहुत सारे खुसूसियात की हामिल थी।
بہت ساری چیزیں خوبیاں ان کے اندر اللہ نے جمع کی تھی، طریقت، معرفت اور شریعت، یہ تمام چیزوں کے وہ سنگم تھے، اور تقریباً پوری دنیا میں 2 کروڑ سے زیادہ ان کے مریدین پائے جاتے ہیں، اور ان سب کو انہوں نے سلسلہ قادریہ غوث العظم دستگیر کے سلسلے میں داخل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیض کو عام سے تام فرمائے۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ان کے مشن کو آگے بڑھایا جائے، ان کے تقوی و طہارت کو آگے بڑھایا جائے، اور لوگوں کو وہ دعوت دے کر کے گئے ہیں کہ ہمارے لیے اگر کامیابی کی کوئی چیز ہے تو وہ مسلک اعلی حضرت پر قائم ہونا ہے، اور یہ کوئی نیا مسلک نہیں، وہی صحابہ کا دین، وہی تابعین کا دین، وہی ائمہ مجتہدین کا دین، غوث پاک اور غریب نواز کا جو دین لائے دنیا میں، اسی کا نام مسلک اعلی حضرت ہے۔ اور جب بھی کوئی مجدد پیدا ہوگا، دین کو اس کے نام سے منسوب کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو زندگی اسی دین متین پر قائم رکھے، اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ شمع نجرات آپ سن رہے خدا کے گھر میں علی کی آمد ہے، خدا کے گھر میں شہادت ہے، علی کا نعرہ دلوں کی طاقت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ میری ملت کے نوجوان سنو، علی ہے بولتا قرآن، سنو حیدر مولا۔